Okay, so starting with this new subject, basically, if I talk about this subject, MDCS, paper number 8, group 3. So basically, if I talk about this subject, what is this? Multidisciplinary, that is different disciplines like company law, IBC, labor law, governance, interpretation of statutes from different disciplines. Some cases are given, which are landmark cases or which came up with some changes in the country. On that note, some cases with the intention of students interpreting the same, understanding the same, they have given in total bare language. So when we talk about the notes, like the utmost you can say purpose of giving you notes is something like, I would say that it should be making things simple for you. If book is always simple, fine. See, I would say paper number 4 में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, सो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. So we have notes that you can see here, right? You have already received this note, and this note is having all the chapter ka case laws, which is definitely as per ICSI material only, but the format is bit change. So if you read ICSI material, you will be having a case which you can say from first line to last line. When you complete the whole case, then you'll realize, okay, what was the question of the case, what is the scenario, and what is the conclusion. But here the question is pre-part, that what is asked in the case, what are the facts of the case, and what is the conclusion. That is how this whole thing is bifurcated. Now before I start with any case, I would like to tell you first thing, student have this mentality that, ma'am, the subject is quite tough because it's an open book. First thing, that is the biggest issue. And I would say it's not a ये कभी ऑप्शन बेटर नहीं होता. अगर किसी को लगे ओपन बुक एग्जाम में तो हमारे जल्द से हो जाएंगे, लेट मी टेल यू, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड ओपन बुक. ओपन बुक होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन यू गो विद द ओपन बुक, योर माइंड विल वर्क ऑन फाइंडिंग समथिंग विच इज गोइंग टू टेक योर लॉट ऑफ टाइम. नंबर 1. Number 2, you would be having continuous conflict in your brain that should I be writing in my own language or I should be copying the stuff which is given to in the module. And 80 to 90% student end up writing whatever is written in the module, and the moment you copy that, the moment you copy it, from that moment only you start losing your marks. So first rule of this subject, are we clear that you cannot copy the module language in your open book exam? Clear? Number one, do not copy the language. अगर आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे कोई लाइन लिखा हुआ है, you want to copy it, तो वो एक्टिव वॉइस में लिखा है, उसको पैसिव वॉइस में कर दो. कुछ भी करो, change the language in some way. It should not be looking like exact module का copy. Number 1, because if you are copying the module, the purpose of open book is gone, and the moment that is felt by the checker, आपका मार्क्स वहीं पे धड़ाधड़ कैंसिल कट होना चालू हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब कुछ सर्च कर पाओ. एंड दैट इज वाई ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट रीड एवरी केस सो थरली एंड नाइसली जस्ट फॉर 2 times, लाइक वंस इन द क्लास एंड सेकेंड टाइम वेन एवर यू गेट द रिविजन वाला टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट. थर्ड टाइम यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट, बिकॉज वेन यू वॉच अ मूवी, राइट, वेन यू वॉच अ मूवी को बार बार देखने से स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है क्या? हेलो, नो ना, राइट. कैन आई से सेकेंड टाइम मूवी जब देख रहे होते तो हमको पूरी स्टोरी पता होती है, समटाइम्स इवन विद द डायलॉग्स, इफ वी लाइक द मूवी सो मच. या इस सब्जेक्ट को एग्जैक्टली मूवी लो. just go with this subject as a storytelling subject, which is giving you some different people का different type का story, and you should be just knowing where the case happened, what was the matter, and what is the conclusion. अगर ये 3 चीज़ें हैंडी है ना, ट्रस्ट मी, मैं अपनी प्रीवियस बैचेस के एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ आपको, उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. व्हेन आई वाज डीलिंग विद द सब्जेक्ट नो, even after like completion of first case, and then we reached on 35th case, but still people were knowing the story of first case, because the case is like what story. और जब भी उसका कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखाना इजीली, यस मैम ये तो ये वाले केस का है, नाम के साथ, मैम ये वाले मिस्टर सो एंड सो का केस है. सो पहली चीज़, बिफोर आई स्टार्ट द सब्जेक्ट आई एम गोइंग ऑन पेपर. तो अपने रिवर्स चलते हैं, लोग पेपर लास्ट में करते हैं, हम पहले कर रहे हैं.
So you can check here multidisciplinary case studies. I'm going on directly page number 25. Just a second. Because I want you to prepare in exactly same way what is required. Okay, so this is your पेपर December 21 का पेपर है. जस्ट फोकस व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1. थोड़ा सा देखो, खाली पेपर को स्टडी करो, एनालाइज करो कि पूछते क्या है, हमको क्या एक्सपेक्टेड है. बिकॉज द मोमेंट यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द पेपर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, हमारा स्टडीज थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में ईजी होगा. रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, सो मैम एक केस लॉ दिया है. ओके, कितने पेजेस का है आप देखो, ऑलमोस्ट 1.5. उसके ऊपर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स ईच. मतलब कहने से 40 मार्क्स यहाँ से सॉर्टेड. हेलो, यस. अभी देखो, वापस मैं इधर जा रही हूँ एंड आपके इस बुक के फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ. एंड फर्स्ट पेज पे अगर आप देखो, so first is given ma'am corporate loss, yeah. Number 2 is security loss. Number 3 FEMA and economic loss, insolvency, competition law, business strategy and management oriented, interpretation, governance issue and labor law. अब अगर लेट्स से इस बार इंस्टीट्यूट का मूड हुआ है कि अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स वाला अपने को इस बार आईबीसी में से पूछना है. अब जिस स्टूडेंट ने पूरा का पूरा फोकस आईबीसी पे डाला होगा उसको तो यार काम हो गया ना, उसका काम तो हो गया ना. या गेटिंग माई पॉइंट. सो उसका काम हो गया. क्यों? बिकॉज मैम यही वाले चैप्टर पे फोकस किया था और यही चैप्टर 40 मार्क्स का आया. लेट्स से इंस्टीट्यूट नेक्स्ट ईयर अगर सिक्योरिटी लॉ पे फोकस करना चाहे तो अकॉर्डिंगली करेगी. मैम इंस्टीट्यूट का मूड बदल गया, उसके बाद क्या अटेम्प्ट है कॉर्पोरेट लॉस. ओके, सो कैन आई गिव यू द एग्जैक्ट मार्क्स वेटेज फॉर एनी चैप्टर हियर? समझ गए ना कॉन्टेक्स्ट, कहने का मतलब समझ गए ना. सी 5 to 10 मार्क्स हर चैप्टर में से आने वाला है विच इज़ वेरी कॉमन. बट वो फर्स्ट क्वेश्चन किस में से आएगा ना, नो बडी नोस. नाउ वन स्टूडेंट व्हेन आई वाज टीचिंग दिस फॉर अ लास्ट पार्ट, राइट, लास्ट टाइम, लास्ट बैच. ओके, अगर आपकी मॉड्यूल में सॉरी आपके मटेरियल में अगर ऐसा प्रिंट हुआ है कि चैप्टर नंबर 7 एंड 9, ये 2 चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा प्रिंट हुआ है दैट प्लीज़ रेफर फ्रॉम मॉड्यूल, राइट, सो प्लीज़ मेक श्योर आपको यहीं से रेफर करना है. जो आपकी बुक में ये चैप्टर्स दिए हुए हैं ना, चेक करो चैप्टर नंबर 7 एंड 9. प्लीज़ अपनी बुक में रेफर चेक करो एक बार, दिए हुए हैं जो आपको मिली है, नॉट प्रिंटेड. नॉट प्रिंटेड. ओके, 7 एंड 9 प्रिंटेड नहीं है, करेक्ट? ओके फाइन, उसमें उस 7 ऑनवर्ड कुछ भी नहीं है. फाइन, गॉट इट, नो प्रॉब्लम. सो बेसिकली आई विल टॉक अबाउट दैट, नो प्रॉब्लम. अभी फिलहाल जिस पे फोकस करो, अपने उसका सोल्यूशन लाते हैं, नो वरीज. अभी अगर मैं वापस इस पे आऊँ, सो चैप्टर नंबर 1 to जो 9 यहाँ पे दे रखे हैं, राइट, उसमें से किसी भी एक चैप्टर को इंस्टीट्यूट फोकस करती है या साथ में 2 चैप्टर को फोकस करती है जिसपे फर्स्ट क्वेश्चन आता है. अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होने के बाद अगर मैं क्वेश्चन 2 पे पहुंचूं तो वही नॉर्मल सा चालू हो जाता है. नॉर्मल सा लाइक क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 2A एंड B मैम कितना मार्क्स का? ये 6 मार्क्स एंड दिस वन ऑल्सो 6 मार्क्स. अब मैं अगर आपको बताऊं, ये 6 मार्क के क्वेश्चन जो है ना वो किसी स्पेसिफिक चैप्टर में से उठाए गए हैं. किसी एक चाहिए, या तो कॉर्पोरेट लॉ से हैं या लेबर लॉ से हैं या बिजनेस लॉ से, कहीं से एक चैप्टर में से उठाए गए हैं. सो दिस इज हाउ देयर नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन. एंड अगर मैं आपको बोलूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मॉड्यूल में से बिना कुछ चेंज किए पूछे हैं. पेपर ईजी है, यस. ओनली रिस्की मैटर क्या है? कोई मुझे बता सकता है इस पूरे पेपर में रिस्की क्या है? इस पूरे पेपर में रिस्की क्या है? टेल मी. बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5
6 जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल के केस लॉ से ही पूछे हुए हैं। इस पेपर में जो रिस्की है ना वो खाली क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो क्वेश्चन नंबर रिस्की क्यों है 1, कहने से ये केस क्या होगा, ये स्टोरी लाइन क्या होगा, ये आप और मैं नहीं जानते, जो 40 मार्क्स का पोर्शन है। कैन आई से दैट? ये कोई रियल केस भी आ सकता है, करंट सिनेरियो में से भी उठा के दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यू रिमेंबर योर इंग्लिश का वो कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग, कुछ याद आ रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग वाला सीन था या जिसमें एक सिचुएशन दी होती थी एंड यू विल बी हैविंग लाइक क्वेश्चंस एंड दैट यू आर सपोज टू आंसर। बस कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 1। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो मॉड्यूल में से एज इट इज उठाए हुए दिए गए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है। जो आपका रिस्क पे हो सकता है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑलवेज ऑन रिस्क, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इंस्टीट्यूट का मूड हो कि भाई ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है वो भी अपने को मॉड्यूल में से ही ड्राफ्ट करना है, दैट्स पॉसिबल, बट 90% चांस कि वो मॉड्यूल में से ड्राफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो भी मॉड्यूल में से ड्राफ्ट कर लिया ना तो फिर इस सब्जेक्ट का पर्पस खत्म हो जाता है। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग द केस स्टडीज टू इंटरप्रेट, जहां पे इंटरप्रिटेशन कराना ही नहीं है। क्लैरिटी? सो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, ऑल यू कैन डू इज जस्ट प्रिपेयर the cases which are already asked in past exams with the answers, so you'll understand the mentality and the kind of you can say पेपर सेटर का मेंटालिटी कि क्या पूछा और कैसे क्वेश्चन पूछा। बाकी उसके बाद की अपकमिंग अटेम्प्ट में क्या आएगा वो ना मैं बता सकती हूँ ना आप, राइट अगर नसीब ये हुआ कि मैम आपने जो 2 चैप्टर कराए थे, मेरे 2 ही चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 7 एंड 9 दैट यू कैन सी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड लेबर लॉस, 7 एंड 9 दोनों ही चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों ही चैप्टर में से 100% आए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेबर लॉ में से एक बार आ चुका है 40 मार्क्स का क्वेश्चन। सो लास्ट बैच में ये दिक्कत हुई थी, वन स्टूडेंट सेड मैम चैप्टर नंबर 9 का वेटेज तो 40 मार्क्स का है। सो आई हैड टू इन्फॉर्म दैट चैप्टर नंबर 9 का वेटेज 40 मार्क्स का नहीं है, उस चैप्टर का लॉटरी लगा था और उस अटेम्प्ट में वो केस लॉ में आया। क्लैरिटी एवरीवन? सो पेपर समझ में आया, पेपर क्या है। सो उसके बाद के क्वेश्चन देखोगे ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर 3 मैम, ए एंड बी अगेन 6 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं, ए एंड बी अगेन 6 मार्क्स। उसके अलावा आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें भी एक क्वेश्चन ए एंड बी 6 मार्क्स, दैट्स ऑल। एंड लास्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, A that is 6 marks and B that is also 6 marks and पेपर खत्म। तो जो है क्वेश्चन 1 में है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर? सो पेपर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट पेपर के रिलेटेड। अब मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दो, जस्ट लेट मी कम्युनिकेट विद द कंसर्न पर्सन दैट हाउ एग्जैक्टली द सिचुएशन इज। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, आई जस्ट कोऑर्डिनेट विद देम, सो अपने कंक्लूजन पे आए कि अपने को एग्जैक्टली कहाँ से करना है, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।